Hello everyone, I hope you all are doing fine. So welcome to Vet It's You. So आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे about the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences and their prospectus about the admission to the postgraduate degree program for the session of 2023 and 24. So let's get started with the video. So prospectus में सबसे पहले बात करते हैं तो ये बेसिकली एडमिशन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कौन से सेशन के लिए है 2023 एंड 24 फॉर द एडमिशन टू एमबीएससी एंड पीएचडी डिग्री प्रोग्राम। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर द एडमिशन। So first of all, the availability of the information booklet on the university website www.rajuvas.org. For MBSc it is available from 17th of February and for PhD also it is available from 17th of February. So this is the same booklet from which we are getting all these details. Moving on, the date of commencement of filling of the online application at the university website www.rajuvas.org is 17th of February 2024 and for PhD it is from 15th of April 2024. Last date of filling application form and deposition of the online fee will be at 28th of February 2024 and for PhD it will be 24th of April 2024. The dates for the counseling. Candidates admitted through the ICR seat will have to report on the respective counseling dates. Venue will be Auditorium College of Veterinary and Animal Sciences. And for the normal students, those who are not going via the ICR seat, so they will have to report at 1st of March for the MVSC and for the PhD 29th of April. Date of registration will be 11th and 12th of March and for PhD 6th to 7th of May. Commencement of classes 13th of March for MBSc and 8th of May for the PhD. So these were the dates that were released by the Rajuvas. Basically क्या है कि Rajuvas एडमिशन कराती है MBSc and PhD डिग्री प्रोग्राम्स के लिए and these were the dates regarding everything from the filling of online application and the dates of counseling and date of registration. So the application fee की अगर मैं बात करता हूं तो application fee will be ₹2500 means 2500 plus all the extra transaction charges through the net banking or debit card using online gateway mode only on the university website. So this is the university website www.rajuvas.org. तो यहाँ पे देखने वाली एक चीज है कि रजुवास अपना एडमिशन कराती है फॉर एमबीएससी एंड पीएचडी डिग्री प्रोग्राम्स और ये बेसिकली जो 2023 में आईसीआर का एग्जाम हुआ था और जो 23 में अपियरिंग स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो ये नोटिस है बेसिकली 2024 का आईसीआर एग्जाम तो अभी हुआ ही नहीं है, डेट्स भी रिलीज नहीं हुई है, तो ये जो बेसिकली लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ था उसके रिगार्ड में जो एडमिशन होने हैं 2023-24 सेशन के उनकी डेट्स हैं. सो आई होप यहाँ पे चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट मैंने कोशिश करी आप लोगों को समझाने की. सो बात करते हैं डेट्स की, हम बात कर चुके एंड एप्लीकेशन फीस की. आगे चलते हैं वीडियो में. General guidelines for the candidates. Candidates are advised to read the information booklet very carefully before filling up the online application form. तो इस चीज की आप चिंता मत करो, आप बस इस वीडियो को देख लेना and all the things will be cleared. Moving on, admission to postgraduate degree program MBSc or PhD will be made on the basis of ICR AIEEE PG 2023 and ICR AI CEJRF SRF PhD 2023 examination whichever is applicable. Basically क्या है, MBSc और PhD के लिए नेशनल लेवल पे एक ICR का एग्जाम होता है, PG एंड ICR का एग्जाम होता है JRF SRF फॉर PhD, isn't it? तो बेसिकली अगर आपको रजुवास में एडमिशन चाहिए तो रजुवास में एडमिशन के लिए जो आईसीआर का स्कोर कार्ड है फॉर बोथ पीजी एंड पीएचडी वो एप्लीकेबल होगा. ठीक है, और उसकी आपको मैंने डेट्स यहाँ पे ऑलरेडी बता दी. जो डेट्स क्या थी आपको फिलिंग फॉर्म करने की 17th ऑफ फेब एमबीएससी के लिए, अप्रैल में थी 15th ऑफ अप्रैल फॉर पीएचडी. तो बेसिकली क्या है, रजुवास पे पेपर कंडक्ट नहीं करा रही है. रजुवास सिर्फ और सिर्फ आईसीआर का जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, आईसीआर के स्कोर कार्ड को वैलिड मानते हुए, ठीक है, बेस मानते हुए आपका एडमिशन लेगी इन इट्स पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज इन व्हाटएवर द कोर्स आर अवेलेबल. ठीक है, कैंडिडेट शैल हैव टू पे एप्लीकेशन फी ऑफ अमाउंट 2500 through net banking debit card using the online gateway mode only on the university website. बेसिकली क्या है, इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस है दैट इज 2500
ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई ये चीज क्या है, ये तो समझ में नहीं यार, हमने तो आईसीआर का एग्जाम दिया, आईसीआर की काउंसलिंग तो हो चुकी है, अब ये कौन सी काउंसलिंग हो रही है। तो बेसिकली क्या है, रजुवास में अगर आपको पीजी करनी है और पीएचडी करनी है तो आपने आईसीआर तो दे दिया। अब आईसीआर देने के बाद आईसीआर के थ्रू जो सीट्स अवेलेबल थी इन दी रजुवास यूनिवर्सिटी वो तो फिल हो चुकी है, उनकी काउंसलिंग हो चुकी है और चल रही होगी, ठीक है। जो भी है, आई डोंट नो द स्टेटस अबाउट द करंट थिंग, बट जो भी आईसीआर के अलावा जो सीट्स हैं वो रजुवास अपनी इंटरनल काउंसलिंग से फिल करती है, तो उस सब की डेट्स हैं यहाँ पे। आई होप यहाँ पे चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, स्टिल आई ट्राई टू मेक सम सेंस आउट ऑफ इट। रजुवास, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, रजुवास इंटरनल काउंसलिंग कराती है और एक आईसीआर के थ्रू भी काउंसलिंग कराती है, ठीक है। तो बेसिकली आईसीआर के थ्रू जो सीट्स थी पीजी और पीएचडी की वो फिल करती है आईसीआर के थ्रू, नेशनल लेवल काउंसलिंग के थ्रू, और जो बाकी बची हुई सीट है उनको इंटरनल काउंसलिंग के थ्रू फिल कराती है, ठीक है। उसी की डेट्स हैं, उसी की वेन्यूज हैं ये, ठीक है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमबीएससी एंड पीएचडी। Indian national of Rajasthan domicile only will be eligible for the admission on state and payment seats for MBSc and PhD degree programs. The valid domicile certificate has to be produced by the candidate at the time of counseling. The relevant certificates of eligibility of the candidate will have to be furnished by the candidate at the time of counseling. अब बेसिकली क्या है, ऐसे भारत के नागरिक जो राजस्थान का डोमिसाइल होल्ड करते हैं वही एलिजिबल होंगे फॉर द स्टेट एंड द पेमेंट सीट फॉर द एमबीएससी कोर्स एंड द पीएचडी डिग्री कोर्स, ठीक है। एंड उन सभी कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के वक्त अपना वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलोंग विद all those other certificates that will make them eligible for the seat have to bring, ठीक है। शुरुआत करते हैं एमबीएससी डिग्री प्रोग्राम की। तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास बीबीएससी एंड एएच डिग्री एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 6 GPA of marks for the general category and 5.5 or equivalent GPA of marks for the OBC, SC, ST, STA, MBC, EWS, PH, defense or any other applicable category as per the reservation policy of Government of India. So basically अगर आपको MBSC करनी है और आपने BBSC एंड AH कर रखी है तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो उन्होंने बता दिया कि आपको भाई स्टेट या पेमेंट सीट चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, राजस्थान का डोमिसाइल होल्डर। एमबीएससी के लिए आपकी जो मिनिमम सीजीपीए होनी चाहिए ऑफ दिस बीबीएससी एंड एएच यूजी कोर्स वो 6 होनी चाहिए फॉर द यूजी, फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड इट कैन बी 5.5 फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, डिफेंस और एनी अदर categories as per the government of Rajasthan. For the master's degree program, the candidate must be domicile of Rajasthan, except the candidates nominated by the ICR and must possesses the bachelor degree in the concerned faculty or the degree equivalent therefore from any other recognized university or institute with the minimum percentage marks prescribed along with the other provision. That the admissions shall be made on the basis of a scorecard of ICR AIEEE PG 2023 examination conducted by the NTICR. State reservation policy will be applicable on all the admission for the state quota seat. बेसिकली क्या है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है तो राजस्थान का डोमिसाइल होना मस्ट है, एक्सेप्ट उन बच्चों के लिए जो आईसीआर की जो डायरेक्ट काउंसलिंग होती है उसके थ्रू रजुवास में एडमिशन ले रहे हैं। अब बेसिकली मान लीजिए कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से है या कोई बच्चा उत्तराखंड से है और वो आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू रजुवास में एडमिशन लेना चाहता है, अगर वो मेरिट में लाया करता है तो उसको डोमिसाइल प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। बट जो बच्चे राजस्थान का डोमिसाइल होल्ड करते हैं वो बच्चे रजुवास के इंटरनल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, बट दे हैव टू बी द राजस्थान डोमिसाइल होल्डर, ठीक है। आशा यहां तक सब चीजें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं पीएचडी प्रोग्राम की। सो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मास्टर्स डिग्री इन रिस्पेक्टिव रिलेवेंट सब्जेक्ट विद नॉट लेस देन 6.5 GPA, equivalent percentage of mark for general category and 6 GPA for the SC, ST, STA, OBC, MBC, EWS, PH, defense and any other categories. So basically क्या, अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है थ्रू रजुवास तो आपको 6.5 GPA चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी एंड OBC, SC, ST, STA, MBC, EWS, PH वगैरह सारी कैटेगरीज के आपको GPA कितना चाहिए, जस्ट 6, ठीक है। For the PhD degree program, the candidate must be Rajasthan domicile, except for the candidates nominated by the ICR and must possesses the master's degree in the concerned subject or a degree equivalent thereto. Any recognized university or institute with the minimum percentage of marks as prescribed and other provision, the admission shall be made on the basis of a score ICR, AICE, JRF, SRF, PhD
2023, the examination conducted by the NTA-ICAR state reservation policy will be applicable on all state quota seat. तो बेसिकली क्या है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पीजी के लिए बताया था, एमबीएससी के लिए बताया था, आईसीआर के थ्रू जाओगे तो कोई डोमिसाइल नहीं लगेगा, बट अगर आप रजुवास की इंटरनल काउंसलिंग से भी आते हो, सो बेसिकली जो मोड होगा सिलेक्शन का, जो बेसिस होगी सिलेक्शन की, दैट विल बी योर स्कोर कार्ड ऑफ आईसीआर AIEE पीजी एग्जामिनेशन 2023. सिमिलरली पीएचडी में भी अगर आपको जाना है, अगर रजुवास के इंटरनल काउंसलिंग से जाओगे तो आपको राजस्थान का डोमिसाइल लगेगा, नहीं जाओगे आईसीआर के थ्रू जाओगे डोमिसाइल नहीं लगेगा. बट दोनों ही केस में आपका जो बेस होगा एडमिशन का वो क्या होगा, आईसीआर AICE JRF SRF पीएचडी एग्जामिनेशन ऑफ 2023. ठीक है. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. There will be one supernumerary seat in the MBSc and PhD degree program in each discipline reserved for the field functionaries working as veterinary officer, senior veterinary officer or any other permitted designation issued NOC for pursuing higher studies by the Department of Animal Husbandry, Government of Rajasthan or any other employment at the time of admission. सो बेसिकली क्या है, एमबीएससी और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम में एक एक्स्ट्रा सुपर न्यूमरी सीट होगी. बेसिकली क्या है, उन कैंडिडेट्स के लिए जो फील्ड फंक्शनरी है, मतलब वो वीओ के पोस्ट में है, सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं और कोई अदर पोस्ट में है इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और एनी अदर एम्प्लॉयमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन. सो बेसिकली इस चीज का मतलब ये है कि भाई कोई वीओ है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि मैं पीजी कर लूं और पीएचडी कर लूं, तो रजुवास में एक सुपर न्यूमरी सीट अवेलेबल है. ठीक है. बात करते हैं आगे. वन एडिशनल सीट इन ईच डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड एट सुपर न्यूमरी seat in the MBSc and PhD degree program for the candidates belonging to other states with the condition that the stipend or the scholarship will be allowed to them to approval of state government. Basically क्या है, एक एक एक्स्ट्रा सीट पीएचडी के लिए और एमबीएससी के लिए हर एक डिपार्टमेंट में अवेलेबल है. ठीक है. हर एक डिपार्टमेंट में एक एक सुपर न्यूमरी सीट अवेलेबल है फॉर दोज कैंडिडेट जिनके पास राजस्थान का स्टेट डोमिसाइल नहीं है. बट यहाँ पे एक कंडीशन है that their stipend and the scholarship will be allowed to the approval of state government. अगर स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कर देती है तो उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा. आगे चलते हैं. फॉलोइंग कैटेगरीज आर exempted from appearing in ICAR AIEE PG and ICAR AICE JRF SRF PhD examination. बेसिकली क्या है, कुछ कैटेगरीज हैं जिनको अलाउ नहीं किया जा रहा है फ्रॉम अपियरिंग इन द पीजी और द पीएचडी एग्जामिनेशन ऑफ 2023 सेशन. Candidates admitted through ICAR foreign nationals and sponsored nominated by ICAR और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऐसे कैंडिडेट जो ICAR और फॉरेन नेशनल स्पॉन्सर्ड सीट्स पे नॉमिनेट किए जाएंगे वो अलाउड नहीं होंगे. फील्ड फंक्शनरी डेप्यूटेड बाय द रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स. ऐसे फील्ड फंक्शनरी विच आर डेप्यूटेड बाय द रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, सो इन कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा. इन सर्विस कैंडिडेट्स ऑफ रजुवास और कंसीडर्ड एज इन सर्विस ऑन रिसिप्ट ऑफ देयर एप्लीकेशंस थ्रू देयर एम्प्लॉयर्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन. जो बेसिकली इन सर्विस कैंडिडेट होंगे रजुवास यूनिवर्सिटी के और इन सर्विस उनको कंसीडर करा जाएगा ऑन द रिसिप्ट ऑफ देयर एप्लीकेशन through their employers required to fulfill the minimum academic qualifications, and if they do not able to fill the minimum academic qualification, they will be not allowed. Moving on, international students will normally considered for admission to PG degree program under the category of ICAR nominee on the seat reserved for the ICAR. If no such ICAR seat is vacant, then the additional seat to be created by the university for such candidates. Basically क्या है, अगर कोई इंटरनेशनल कैंडिडेट है, बेसिकली क्या है, अगर कोई इंटरनेशनल कैंडिडेट है, ठीक है, सो द एडमिशन फॉर द पीजी डिग्री प्रोग्राम विल बी कंसिडर्ड वाया आईसीआर नॉमिनी ऑन द सीट रिजर्व फॉर द आईसीआर. और अगर आईसीआर की ऐसी कोई सीट वैकेंट नहीं होती है तो एक एडिशनल सीट का क्रिएट करा जाएगा, उसको क्रिएट करा जाएगा फॉर दीज इंटरनेशनल स्टूडेंट. ठीक है. Foreign sponsored nominated through the ICAR shall be required to pay a bench fee as prescribed by ICAR or any other authority of Government of India. The terms and the conditions set by the ICAR or any other authority of Government of India shall be applicable to such student. So basically जो foreign sponsored nominated student होंगे, ठीक है, that will be required to pay a bench fee जो भी ICAR ने decide कर रखी होगी और any other authority of Government of India. The terms and the conditions are set by ICAR or any other government of India
are applicable to all these foreign students. आगे बढ़ते हैं वीडियो में. अब हम लोग बात करेंगे एडमिशन टू एनी स्टडी प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय द कैंडिडेट एज अ मैटर ऑफ राइट in case of a person is refused to admission by the admission board based on any specific reason despite his or her having secured such merit by which he or she stands higher than the last admitted candidate of his or her category. Such candidate will be giving a hearing by admission board. The decision of vice chancellor in this regard will be final. So basically क्या है, यूनिवर्सिटी में किसी भी स्टडी प्रोग्राम पे कोई भी सीट पे स्टूडेंट्स अपनी अधिकारिता को क्लेम नहीं कर सकते. इन सच ए केस जो भी पर्सन रिफ्यूज कर दिए जाएंगे बाय द एडमिशन बोर्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन एनी स्पेसिफिक रीजन in a case that they earn such a good merit and stands higher than the last admitted candidate, so उन लोगों की सुनवाई होगी बाय द एडमिशन बोर्ड और जो वाइस चांसलर सर होंगे या मैम होंगी उनके डिसीजन जो होगा दैट विल बी द फाइनल. आगे चलते हैं वीडियो में. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द एडमिशन. So the reservation policy of government of Rajasthan will be followed for the admission to the masters and the PhD program. However, in the event of any seat failing vacant due to non-availability of applicant and candidates of a particular reservation category from the reservation quota or unreserved or that reserved seat for ICR, then such vacant seat shall be filled up with the student belonging to any other category as per the state reservation policy. So basically क्या है, जो भी reservation policy है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की दैट विल बी फॉलोड. और अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी की सीट खाली रह गई, ठीक है, कोई भी सीट रिजर्व कैटेगरी की जो खाली रह गई, सो दैट सच वैकेंट सीट विल बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू एनी अदर कैटेगरी एज पर द स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी. ठीक है, बात करते हैं डिनायल एंड कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन की. So simply the admission of an applicant suppressing any information or giving any wrong information of facts or forging his her signature of or of his or parents or attaching false certificates shall be cancelled at any stage before or after the admission as well as during the progression of the degree program, which shall be in addition to any other punishment that may be awarded to him or her for the concealment of the facts. So basically ऐसे applicant जिन्होंने कोई भी फर्जीवाड़ा कर रखा है, चाहे गलत साइन कर रखे हैं, चाहे गलत इंफॉर्मेशन है, XYZ, सो उनका एडमिशन किसी भी टाइम पे कैंसिल कर दिया जाता है. इवन इन द डिग्री प्रोग्राम अगर उनका एडमिशन हो भी जाता है किसी भी कारणवश और उनकी डिटेल्स बाद में गलत पाई जाती हैं, सो दे ऑल विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड द डिग्री कोर्स. आगे चलते हैं. फॉलोइंग कैंडिडेट्स शेल नॉट बी गिवन एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूट इन कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी इवन इफ दे क्वालिफाइड ICAR PG और ICAR PhD 2023 एग्जामिनेशन. और ऐसे स्टूडेंट्स को किसी भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा इवन दे आर क्वालिफाइड PG और आइदर PhD एग्जामिनेशन ऑफ 2023 सेशन. A candidate against whom any FIR has been lodged by the university or any of the constituent or affiliate private veterinary college or by the any other competent authority of the university, a candidate who has been punished by the university under rule of discipline. और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको यूनिवर्सिटी अंडर रूल ऑफ डिसिप्लिन के अंतर्गत कोई पनिशमेंट मिली है या FIR दर्ज है, उन लोगों का भी एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा. अब बात करते हैं काउंसलिंग की कुछ जनरल गाइडलाइंस के बारे में. All the candidates willing to take admission shall report positively on notified date for counseling before a committee constituted by a dean and the chairman faculty. So जो भी candidates admission लेना चाहते हैं उन लोगों को उस कमेटी के सामने अपने आप को उपस्थित करना पड़ेगा on the date of counseling that is constituted by respective dean sir and the faculty members. The candidates will not be issued any letter to attend counseling. कोई भी लेटर सेपरेट जनरेट नहीं किया जाएगा to any sort of candidates. आपकी जो काउंसलिंग की डेट है उस दिन आपको उस पर्टिकुलर वेन्यू पे रिपोर्ट करना पड़ेगा. The final merit list shall be prepared by committee for admission in each major subject. So basically क्या है, जो कमेटी है वही फाइनल मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करेगी in each major subjects. ठीक है. No provision of TA and DA to the candidates for attending counseling by the university. कोई भी TA ट्रैवलिंग अलाउंसेस और ड्राइविंग अलाउंसेस कुछ भी नहीं मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जो भी काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हैं बाय द यूनिवर्सिटी. The admission to the various program will be done strictly on the basis of merit while strictly following the reservation policy of government of Rajasthan.
सो एडमिशन का बेसिस क्या होगा आईसीआर में? पीजी और पीएचडी का जो स्कोर कार्ड है और साथ ही साथ रिजर्वेशन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. The candidates eligible for MBSc course program will be asked for an option of sub-subject from the major subject group, veterinary science or animal biotechnology or veterinary biochemistry only, strictly as per the availability and eligibility in the particular major subjects group already opted in the entrance examination and entertained only for that subject or college for which the vacancy is available at the time of counseling. So basically क्या है, जो भी कैंडिडेट्स एमबीएससी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा फ्रॉम द मेजर सब्जेक्ट ग्रुप. मेजर सब्जेक्ट ग्रुप कौन कौन से होते हैं? वेटनरी साइंस, एनिमल साइंस, ठीक है, वेटनरी बायोकेमिस्ट्री एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी. सो दीज आर द मेजर सब्जेक्ट. अब इनके अंदर जो पर्टिकुलर सब सब्जेक्ट होते हैं, इन सब्जेक्ट्स के लिए उन कैंडिडेट्स को क्या दिया जाएगा? ऑप्शन दिया जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आपने जब आईसीआर का एग्जाम भरा था, अब आईसीआर में आपने वेटनरी साइंस चूज करी, तो अब ऐसा नहीं कर सकते आप रजुआस की काउंसलिंग में जाके आपने बोल दिया भाई मुझे तो एनिमल साइंस का सब्जेक्ट दे दो. आपने जो मेजर ग्रुप का ऑलरेडी सिलेक्शन कर रखा है, ठीक है, उसी सिलेक्टेड ग्रुप में से जो सब सब्जेक्ट है उसका ऑप्शन दिया जाएगा आपको डिपेंडिंग ऑन द सीट अवेलेबिलिटी एंड योर एलिजिबिलिटी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कैंडिडेट सिक्योरिंग इक्वल मार्क्स इन आईसीआर पीजी एंड PhD examination will be admitted in the following order of preference. One who have scored more marks in master's bachelor degree examination followed by the senior secondary examination or its equivalent. So basically क्या है, अगर ऐसे दो बच्चे जाते हैं काउंसलिंग के लिए जिनका दोनों का स्कोर जो है वो सेम है, ठीक है, सो दोनों का स्कोर अगर सेम होगा तो कुछ क्राइटेरिया होगा कि भाई किस तरीके से काउंसलिंग में उन लोगों को सीट्स दी जाएगी. सो पहली प्रेफरेंस उसको मिलेगी जिसने मास्टर्स और बीबीएससी, मतलब अगर कोई पीएचडी का बंदा है तो उसने एमबीएससी में ज्यादा नंबर है तो उसकी ज्यादा मेरिट होगी, और अगर एमबीएससी चाहता है और बीबीएससी एंड एएच में ज्यादा नंबर है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी. और अगर यहाँ पे भी टाई ब्रेकर नहीं टूटता है तो जो 12th में उन दोनों के मार्क्स थे उसके बेसिस पे एडमिशन होगा. ठीक है, जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसकी हायर मेरिट होगी. The university reserves the right to admit or reject admission of any candidate without assigning any reason. यूनिवर्सिटी किसी भी समय पे किसी भी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल कर सकती है. इट विल नॉट इन्फॉर्म बाय द यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी का कोई दायित्व नहीं बनता कि वो आपको इन्फॉर्म करे व्हाट वाज द रीजन. If for any reason to be recorded in writing, the admission committee suspect that a particular candidate had obtained a certificate by misrepresenting the fact, the admission committee will take the final decision regarding the admission of the candidate. अगर किसी भी समय पे ये पता चला एडमिशन कमेटी के द्वारा कि आपने कोई गलत सर्टिफिकेट को सबमिट करा है, कुछ मिस प्रेजेंटेशन करी है इंफॉर्मेशन की, तो जो फाइनल डिसीजन होगा रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट विल बी इन द हैंड्स ऑफ एडमिशन कमेटी. डॉक्यूमेंट नॉट फाउंड कंफर्मिंग टू रिक्वायरमेंट में लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन. अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आओगे तो आपका एडमिशन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग द कैंडिडेट हु इज कॉल्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट मस्ट प्रेजेंट हिम और हरसेल्फ बिफोर द कमिटी, एंड इफ द अलॉटेड सीट आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ही और शी मस्ट डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज फी. आप आए एमबीएससी की काउंसलिंग करने या पीएचडी की काउंसलिंग करने, आपको सीट अलॉट हो गई, ठीक है, सीट अलॉट होने के बाद आपको प्रिस्क्राइब्ड जो फी है उस यूनिवर्सिटी और डिग्री कोर्स की और कॉलेज फी, ठीक है, वो आपको जमा करनी होगी. The candidate failing to report in the college after the admission on a stipulated date will not further be attained and his total amount of fees will be fortified. अगर वो बच्चा जिसने सब कुछ फीस वगैरह सब कुछ जमा कर दिया और पर्टिकुलर डेट पे कॉलेज रिपोर्ट नहीं कर पाया तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और उसकी फीस वापस नहीं होगी. ICAR nominated student have to report on the counseling date declared by the university for taking admission to MBSc and PhD programs and have to deposit their prescribed fee of the university on counseling date. So basically ICAR के द्वारा जो nominated candidates हैं उनको counseling dates में university में report करना होगा for the admission to MBSc और PhD program and they have to deposit the prescribed fee to the university on the counseling date itself. ठीक है, बात करते हैं आगे. All the original certificates and mark sheet must be brought by the candidate at the time of counseling and prescribed fee has to be deposited at the time of allotment of the seat, failing which the admission will be given to the next candidate in the merit. अगर आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके आते हो, मार्कशीट्स वगैरह सब कुछ लेके आते हो और प्रिस्क्राइब्ड फीस को सबमिट कर देते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा.
अगर नहीं कर पाओगे फीस को सबमिट तो आपका एडमिशन तुरंत ही कैंसिल हो जाएगा और जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा मेरिट में उसको वो सीट अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो में। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द शेड्यूल ऑफ द काउंसलिंग। सो बेसिकली एमबीएससी डिग्री प्रोग्राम के लिए जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए काउंसलिंग की डेट है इट इज 1st of March 2024 फ्रॉम 9 AM। ठीक है, सेम डेट एंड टाइम इज for the ICR admitted student, field functionaries of government of Rajasthan only, and in service candidates of Rajwas और State Agriculture University। और PhD प्रोग्राम्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स ICR admitted students, field functionaries and in service candidates के लिए डेट एंड टाइम क्या है काउंसलिंग की 29th of April 2024 at 9 AM एंड वेन्यू क्या होगा ऑडिटोरियम ऑफ कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर। ठीक है, तो ये जो काउंसलिंग की डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन आपको पहुंचना ही पहुंचना होगा वाया यू आर फ्रॉम ICR और वाया यू हैव अ स्टेट डोमिसाइल। ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो में। सो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आप एक बार देख सकते हो वीडियो को पॉज करके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करिए जाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पर्टिकुलर PDF की जो लिंक है वो पिन कर दूंगा, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। ठीक है, बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। ऑल द कैंडिडेट्स प्रोविजनली एडमिटेड टू MBSc एंड PhD डिग्री प्रोग्राम विल हैव टू सबमिट अ फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल जूरिस्ट एंड मेडिकल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज। द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड अनसुटेबल इन फिजिकल फिटनेस विल बी कैंसल्ड। इन सच केसेस फीस विल बी फोर्टिफाइड। बेसिकली क्या है, MBSc एंड PhD स्टूडेंट्स जो होंगे जिनको सीट अलॉट हो गई होगी उनको एक फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा एंड इट विल बी फ्रॉम व्हाट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज। और अगर आप अनसुटेबल पाए जाते हो फिजिकल फिटनेस में सो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। सो फीस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आते हैं MBSc और PhD। ठीक है, तो ये पर सेमेस्टर की फीस है। MBSc 2 साल का होता है मतलब 4 सेमेस्टर और PhD मिनिमम 3 साल की होती है मतलब कि 6 सेमेस्टर। सो बॉयज जो अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के हैं उनकी रजिस्ट्रेशन ट्यूशन और अदर फी मिला के है 10,030 रुपीज। ठीक है, गर्ल्स जो अनरिजर्व कैटेगरी और EWS कैटेगरी की हैं उनकी फीस है 7,280 रुपीज मतलब कि 7,280 रुपए। बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ OBC SC ST MBC और एनी अदर कैटेगरी उनकी रजिस्ट्रेशन ट्यूशन अदर फी कितनी है 4,530 रुपीज। ठीक है, पेमेंट सीट फॉर ऑल द कैटेगरीज कितनी है 60,000 फॉर PhD एंड 40,000 फॉर MBSc। Candidate has to deposit the tuition fee and the other fee as per his or her category in addition to prescribed fee. It means 40,000 for MBSc and 60,000 for PhD. अगर पेमेंट सीट में आप एडमिशन लेते हो तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड फी है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी उसके अलावा आपको 40,000 रुपए देने पड़ेंगे फॉर MBSc और 60,000 रुपए देने पड़ेंगे फॉर PhD। ठीक है, हॉस्टल फी के बारे में नोटिफिकेशन जो है जो 10/11/2021 को यूनिवर्सिटी में निकला था उसी के रिगार्डिंग होगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आप रजुवास के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। सो हॉस्टल फीस के बारे में भी आपको पता चल जाएगा फॉर द सिंगल सीटेड एंड द डबल सीटेड रूम। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की सब्जेक्ट वाइज फॉर द स्टेट एंड द पेमेंट सीट फॉर द MBSc फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ 2023 एंड 24। तो बेसिकली रजुवास के अंदर 3 कॉलेज आते हैं, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर, उदयपुर एंड PGIVR जयपुर। ठीक है, तो हमारे डिपार्टमेंट हैं टोटल कितने, डिपार्टमेंट्स आर टोटल 17। ठीक है, एंड टोटल 17 डिपार्टमेंट में जो बीकानेर में सीट अवेलेबल है स्टेट की सीट मतलब कि जो डोमिसाइल होल्डर्स की सीट है सो दैट इज जस्ट 31। ठीक है, एंड फॉर द पेमेंट सीट कवास बीकानेर में 19 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, नेक्स्ट है कवास उदयपुर में, तो राजस्थान डोमिसाइल स्टेट होल्डर्स इन 17 डिपार्टमेंट में कितनी सीट अवेलेबल है जस्ट 19, पेमेंट सीट कितनी है 12। ठीक है, और बात करते हैं PGIVR जयपुर की, तो स्टेट और पेमेंट सीट की अगर मैं बात करूं तो टोटल स्टेट सीट 19 है एंड पेमेंट सीट आर 14। द रोस्टर फॉर एडमिशन विल बी फॉलोड एज पर द राजस्थान स्टेट पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। अनफिल्ड सीट्स for any category will be filled as per the state reservation policy. Unfilled seat of ICR candidates will also be admitted through the state reservation policy. Basically क्या है, कोई भी सीट अगर स्टेट की हो और चाहे क्या कहते हैं पेमेंट की हो तो दोनों को ही सीट अगर खाली रह जाती हैं तो उनको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है उनके रिगार्ड्स में ही फिल करा जाएगा। ठीक है,
बात करते हैं सीट मैट्रिक्स फॉर द स्टेट एंड पेमेंट सीट फॉर द पीएचडी। तो 3 कॉलेज हैं, बीकानेर में, उदयपुर में और जयपुर में है, और डिपार्टमेंट कितने हैं आपके पास? 16। ठीक है, तो ये आप सीट मैट्रिक्स एक बार देख सकते हो पॉज करके वीडियो को, और बाकी आपको यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इस पर्टिकुलर पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली जो अनफिल्ड सीट्स होंगी इट विल बी फिल्ड बाय द स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी। मींस क्या, जो राजस्थान गवर्नमेंट की स्टेट पॉलिसीज होंगी उन्हीं के रिगार्ड में इन सीट्स को फिल किया जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन बुकलेट जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज ने जस्ट ही रिलीज किया था टुडे इटसेल्फ 17th ऑफ फरवरी को, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो आई होप सभी को सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी कि भाई करना क्या है, कैसे करना है एंड क्या क्या करना है। ठीक है, मेन हाइलाइट्स क्या थे वीडियो के कि भाई स्टेट राजस्थान है, उसके डोमिसाइल होल्डर स्टेट सीट्स पे एप्लीकेबल हैं। एक सुपर न्यूमररी सीट हर एक डिपार्टमेंट में है फॉर फंक्शनल वेटनरीज, एंड एक सुपरनरी सीट जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में एमबीएससी एंड पीएचडी में पेमेंट के रूप में अवेलेबल है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्टेट्स। ठीक है, आपने फीस स्ट्रक्चर देख लिया, डेट्स ऑफ काउंसलिंग देख ली, और ये बात ध्यान रखना आईसीआर एडमिटेड स्टूडेंट्स को भी उन्हीं डेट्स पे रिपोर्ट करना है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सारी पेमेंट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म की ऑनलाइन होगी। ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे, ऑफिशियल वेबसाइट के साथ आप लोग एक बार प्लीज जुड़े रहना टिल द टाइम ऑफ काउंसलिंग, क्योंकि कभी कभी डेट्स प्रीपोन्ड और पोस्टपोन्ड हो जाती हैं। सो आई जस्ट वांट यू टू हिट द सीट ऑफ योर चॉइस एंड शायद मिस ना करें आप लोग, इसलिए थोड़ा सा जुड़े रहना यूनिवर्सिटी वेबसाइट के साथ। ठीक है, और जो भी आप पेमेंट्स करोगे, फॉर्म्स भरोगे और जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्लीज मेक श्योर कि आप उन सभी चीजों को कैरी करो, एंड ऑल द बेस्ट। So I hope you found the video very informative. So hit the like button, share the video, subscribe the channel, and do comment in the comment box. Thank you all the best.